आलम में चैनी वक्त में असली छावतम भूत काला रोज बेजान जानी हुन बस चावतम। बिल्कुल, अवेयरनेस, जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आज हम उसी जानकारी के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 3rd December 2020. This is the date, and this is a very important date in the history of mankind. 3rd December annually is observed as the International Day of Persons with Disabilities. It has been recognized by the United Nations since 1992, and until 2007, it was originally known as the International Day of the Disabled Persons. It focuses on a specific theme and a specific issue every year, and the theme for the year 2020 is "Not all disabilities are visible," hence the name Darparda. Ladies and gentlemen, students, White Globe, in collaboration with the Department of Information and Public Relations, Jammu and Kashmir, welcomes you all in an event that is dedicated to the people with special abilities. People with disabilities who are known as are no lesser than people with no visible disability. Almighty has created us with love, so we must give love. We must respect people, we must give affection, sympathy, and more importantly, we must empathize with people who are suffering from any kind of disability. And it's a very important message to the parents out here, that if your child is suffering from any kind of congenital disorder, if you find any kind of delay in his or her development, do not worry. Every problem has a solution. Allah Ta'ala Quran पाक में ही फरमाता है, इन्ना मअल उसरि युस्रा। अल्लाह ताला ने ये जो बच्चा आपको दिया है ना, ये फूल की मानंद है, और इस फूल की आप यारी कीजिए, इसको मुरझाने ना दीजिए। Be happy with the blessing that you get in the form of a child. Child can be a male, a female, a transgender, or a differently able child. That is obviously a child that has some kind of disability. So the therapists, they have done a special course from International Classification of Functional Disability and Health, ICF. We have different therapists here, as I said, experts are here to serve you. We have rehab therapists, occupational therapists, vocational therapists, speech therapists, mental health counselor, and a counselor in general, and a special educator. And not to forget to mention pediatrician, whose services are available always 24/7. You can bring your child suffering from any kind of neurological condition or psychological condition. Trust me, आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो 10 कदम बढ़ाएंगे. And every problem has a solution if it is treated at the right time, if it is tackled at the right time. Sooner the better. Mr. Ghulam Nabi War, he is the president of our Private School Association. He is my mentor. I have learned a lot from him. Thank you so much for joining this event, for gracing the event. And we are also joined by a special guest, RJ Wijdan. आप सबने नाम तो सुना ही होगा, RJ Wijdan from Radio Mirchi. It's hot. Do listen to his program. आप रोज इनको live सुन सकते हैं रेडियो पे. He has been our guest in the event that was held against drug addiction. Thank you so much, sir, for joining us. तो मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपके एंटरटेनमेंट का हमने इंतजाम किया हुआ है, तो हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। एंड हम पहले सिंगर को बुलाते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर महक फ्रॉम श्रीनगर।
तेरे ही नाम से हर तेरा है, तेरे ही नाम से हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाह Allah
दावत देना चाहते हैं हमारी वादी के एक मशहूर मारूफ सिंगर को, जिन्होंने वादी कश्मीर के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी अपने कॉन्सर्ट्स किए हैं और नाम कमाया है और हमारी वादी का नाम हर कोने में रोशन किया है। वो किसी तारुफ की तरह से मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर वसीम खान। सितमगरी के तरीके सिखाए जाते हैं, सितमगरी के तरीके सिखाए जाते हैं, हसीन बनते नहीं बनाए जाते हैं। हमारे सामने गैर से छुप छुप के मिलना तो जख्म कलेजे को खाए जाते हैं। दिल जलाए जाते हैं। हमारी बज़्म और उस बज़्म में फर्क इतना, वहाँ चराग यहाँ दिल जलाए जाते। दिल उसका उसका भी है मेरा भी है, फर्क शकील इतना, लेकिन वो पत्थर है जो साबुत है, ये शीशा था जो टूट गया। गलती कर बैठा है, 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 गलती कर बैठा है।
से जोड़ दिया, अखियों ने आके भर भर के तेरे विरद बना के याद किया, अखियों ने आके भर भर के तुझे विरद बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया। और जुर्म किया है तो भी बता, ये जुर्म की क्या है सजा। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, 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 तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा। बोल कबारा कबारा, बोल कबारा कबारा, बोल यारा हो यारा, बोल कबारा क्या होगा। बोल कबारा कबारा, बोल कबारा कबारा, बोल यारा हो यारा, बोल कबारा क्या होगा। बोल कबारा कबारा, बोल कबारा कबारा, बोल सब मेरे सब इकट्ठे बोलिए। बोल कबारा कबारा, बोल कबारा कबारा, बोल कबारा कबारा, बोल कबारा दिया दिया मुझे। कबारा बोल कबारा कबारा, 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 और आज के दिन की अफादियत और अहमियत को ना भूलें। दिस इज 3 दिसंबर 2020। एनुअली हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और इस साल का थीम है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। इसीलिए हमने नाम चुना है दर पर्दा। क्या नाम है? ओके, थैंक यू। चाहती हूँ वाइट ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन एडवोकेट सबा शेख को। प्लीज वेलकम एडवोकेट सबा शेख ऑन स्टेज प्लीज। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I welcome you all, especially our young students. My name is Sheikh Sabah. I am the chairperson of White Globe. Today we have gathered here on the World Disability Day. Fortunately, I am a lawyer who also happens to be working on the rights and upliftment of children with special ability. We as humans should empathize on giving back to the society. The whole purpose of us being different from others is to acknowledge our differences and make peace with it. This day aims at encouraging a better understanding about people affected by disabilities, learning about their true abilities, and being aware of their rights and dignity. International Day of Persons with Disability is not confined just to physical conditions, but it also encompasses mental disabilities like autism, Down syndrome, and other neurological conditions. A poor treatment and a negative comment can affect their self-esteem, confidence, and performance at work and push them into further depression. If you have a loved one, a colleague, or have come across even a stranger with disabilities, please keep in mind some important points which I am going to tell you all.
first. Ask before offering help. Speak clearly and listen to them. Make them feel confident. Let's respect personal space and make changes. So all I want to tell you is that while dealing with such people, please and please keep all these points in your mind. Thank you. Now we have a PowerPoint presentation from a representative of White Globe. She is the coordinator of White Globe organization, Miss Nushatul Sabah. Please put your hands together for Miss Nushatul Sabah. The children with special ability or disability. Myself, Nushatul Sabah, operational head, White Globe. I'm really sorry कि वीडियो क्लियर नहीं हो पाया पहले, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी बच्चे हैं, जिनको हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कहते हैं या स्पेशल एबिलिटी जैसे भी समाज में कहते हैं, गर्ज ये था कि जो भी आपने यहाँ पे देखा उसका ये मकसद है कि हम इन बच्चों को वो इंक्लूजन दें कि जैसे हम मेन स्ट्रीम बच्चों को देते हैं। चिल्ड्रन विद मेन स्ट्रीम स्कूल अपॉर्चुनिटी, एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी, कम्युनिटी ओरिएंटेशन जो भी हमें मिलता है, तो हम चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटी को भी उसमें इंक्लूड करें ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि उनको डिग्निटी मिले। उसमें जितने भी हम यहाँ पे काम करते हैं वो एज अ टीम वर्क होता है, जिसमें हमारे सारे थेरेपिस्ट्स, फॉर एग्जाम्पल स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, वोकेशनल थेरेपिस्ट हो, या बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो देता है, या एसेसर हो, काउंसलर हो, ये सारे टीम वर्क बनाकर जो है बच्चे को एसेस करते हैं, देखते हैं डिसेबिलिटी किस हद तक है और किस तरह से उस पर काम किया जाए। और हमने देखा है फॉर एग्जांपल में सर्बल पाल्सी बच्चे को अगर हम देखते हैं उसमें हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी बहुत देखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उनका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो कहीं पे हैम्पर है। इस वजह से उनको इंटेलेक्चुअली हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से हम टीम वर्क पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, और जब भी हमें फॉर एग्जांपल मेडिकल स्पेशलिस्ट जैसे मैंने यहाँ पे कहा, या साइकोलॉजिस्ट जिसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम इनको अकॉर्डिंगली इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम इनको यहाँ पे जितनी भी मैंने आपको सर्विसेज बताई ये हम इनको देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, क्या आप इसको फर्दर इस चीज़ को मतलब प्रोपिगेट कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बच्चों को पता चले और यहाँ पे एडमिशन हासिल करें। थैंक यू। We have witnessed participation from various schools of the valley. Thank you so much to the principals and chairpersons of the school, because in COVID it was already, it was very difficult for parents to allow their kids. Thank you so much to the parents as well. Now I would like to invite our Honorable Deputy Mayor, Mr. Parvez Qadri, to distribute certificates to the participating schools. Mr. Parvez Qadri, Deputy Mayor of Srinagar. मैनकाइंड के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि ये लोग हमसे अलग नहीं हैं। दे आर द ह्यूमन राइट्स, वी पीपल आर। अब ये डिसेबिलिटी का मतलब ये तो नहीं है कि हम इनको अपने से अलग करेंगे। मुझे लगता है व्हाइट ग्लोब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया आज, जो उन्होंने ये दिन मनाया। ये दिन एक दिन का नहीं है, ये तो हर साल बनना चाहिए, हर दिन बनना चाहिए, और उनको अपने से अलग नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे घर में, हमारी फैमिली में, या हमारी दुनिया में ऐसे कोई लोग हैं, लेकिन हमें उनका सहारा बनना है, उनके साथ रहना है, उनको कभी एहसास नहीं दिलाना कि उनको किसी चीज़ की कमी है। दे आर हैविंग समथिंग लैकिंग, दे आर लैकिंग समथिंग, ऐसा कभी एहसास नहीं दिलाना है। तो इट्स अ बिग इनिशिएटिव। आई थिंक एवरीबडी शुड जॉइन हैंड्स विद दिस थिंग एंड दे शुड हेल्प द पीपल विद इट। और क्या मैसेज है कि इस दिन पे, क्योंकि जो बच्चे स्पेशली एबल जो बच्चे हैं, इनको लोगों को नफरत करते हैं, लोग इनके साथ प्यार मोहब्बत से नहीं पेश आते हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? मैं तो कहती हूँ कि लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि ये हमारी तरह ही है। इनको अगर हम
अपने से अलग करेंगे तो अपने एक अंग को अलग कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने अल्लाह ताला ने किसी को कोई कमी खामी रखी है तो हम उसकी ज़िंदगी में और कमी खामी कर देंगे, उसको खुद से दूर करेंगे, ये तो नहीं है। हो सकता है हमारे साथ ऐसा हुआ हो तो हम क्या करते हैं। तो वी शुड नेवर बी लाइक दैट। हमें एटलीस्ट ह्यूमैनिटी होनी चाहिए सबके लिए एंड वी शुड हेल्प देम। जहाँ आपको लगे ऐसे इंसान है, ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें पेश रहना चाहिए उनकी ज़रूरत के लिए। हर एक को अवेयर करने की ज़रूरत है, कम से कम ये चीज़ उनके दिल में जगाने की ज़रूरत है कि हम लोग इंसानों की तरह पेश आए, इन लोगों से जानवरों की तरह नहीं। बहुत ज़रूरत है इस अवेयरनेस की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस अवेयरनेस की। क्या कुछ करने की ज़रूरत है इन बच्चों के लिए, इनके जो इकदाम उठाएं ताकि ये भी एक अपनी सोसाइटी में अच्छे से पहले तो ये बात है कि इनको ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि इनके लिए कोई रुकावट है, जो लोग उस काबिल हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम इनको एक तमाशाई की तरह ना देखें। हम इनको थोड़ा, जब भी इनको हमारे हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, हम थोड़ा इनके करीब जाके वो एहसास करें उस चीज़ का कि वाकई में इनको उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है हम लोगों से। वर्ल्ड डिसेबिलिटी दिन के ताल्लुक़ से स्कूलों की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि स्कूलों की इंतज़ामिया, उस्ताद कराम, प्रिंसिपल साहिबान आज के दिन के ताल्लुक़ से बच्चों में अवेयरनेस लाएँ ताकि ये जो माज़ूर अफराद हैं, डिसेबल अफराद हैं, उनके क्या मुश्किलात हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी दिक्कतों से गुज़रती है, उस ताल्लुक़ से एक एहसास पैदा हो, नंबर एक। दूसरी बात, चूँकि ये भी मानना पड़ेगा कि अक्सर डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो मालूम ही नहीं होती। आम तौर पे स्कूलों में हमें इस किस्म की चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि बच्चे की कोई डिसेबिलिटी है लेकिन स्कूल उसको स्टडी नहीं कर पाता है, रीड नहीं कर पाता है, एनालाइज नहीं कर पाता है, तो उसकी डायग्नोज प्रॉपर्ली नहीं होती है क्योंकि स्कूलों के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चंद स्कूलों को छोड़ के जिनमें बाकायदा स्पेशलाइज्ड काउंसलर्स हैं, अच्छी तरह से एक्सपर्ट्स बच्चों को एनालाइज करते हैं, मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं जिनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर या उतना स्टाफ अवेलेबल नहीं है। देखिए, जो भी डिसेबल बच्चा खासकर है, उस ताल्लुक़ से सरकार को चाहिए कि उसको सरकार और नींव सरकार खाते में न तोले। अगर NGOs काम कर रही हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनके इनिशिएटिव्स को जो है स्टेट को हर सतह पर हौसला अफजाई करके उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें इस सिमत में। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर एक डिसेबल बच्चा स्कूल में है, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, पहली बात यह है कि जो अपने सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं ऐसे बच्चों को जो है ताकि हम उनको वहाँ पे सपोर्ट दे सकें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। हाँ, ये प्राइवेट में ऑलरेडी है और ज़्यादातर स्कूलों में अगरचे नहीं है, उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है क्योंकि सरकार को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करे, सोसाइटी को इन्वॉल्व करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक कोऑपरेटिव वे में इन बच्चों के ताल्लुक़, इन माजूर जो अफराद हैं, इनके ताल्लुक़ जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, उस ज़िम्मेदारी को हम पूरा कर सकें। इस दिन के ताल्लुक़ से चूँकि ये यूनाइटेड नेशंस जो ये दिन ऑब्ज़र्व करते हैं, इसका बुनियादी पर्पज़ तो यही होता ना है कि अवेयरनेस लाई जाए ताकि पब्लिक पॉलिसीज़ बने, बाकायदा सरकार इस पर ज़ोर दे, इस पर गौर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे माजूर अफराद को उनके ताल्लुक़ से ऐसी स्कीमें बनाएं जिनसे उनको बेनिफिट हो। क्या वजह है कि जितने इंस्टीट्यूशंस भी इस सिमत में बनते हैं, इस ताल्लुक़ से बनते हैं, वो आगे बढ़ने के बजाय चंद सालों के बाद देखते हैं कि उनकी हालत जो है उतनी अच्छी नहीं होती है या वो उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। हमारे सामने जिस वक्त मिसाल है कि बहुत सारे सरकारी जो उनका निज़ाम है, सिस्टम है, उस में आज तक जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट कायम हुए हैं, यानी सरकारी निज़ाम के तहत जितने भी ऐसे इदारे कायम हुए हैं, उनकी प्रोग्रेस मायूस कुन है, उतना रिज़ल्ट बिल्कुल सामने नहीं आ रहा है।
ज़रूरत इस बात की है कि सोसाइटी आगे आए, सरकार पर दबाव बनाया जाए कि इन माजूर अफराद के ताल्लुक से जो हमारी एक इंसानी ज़िम्मेदारी है, इखलाकी ज़िम्मेदारी है, एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है, इसको हम पूरा करें। स्कूलों में भी मैं उस्ताद साहिबान से, प्रिंसिपल साहिबान से यही गुजारिश करूँगा कि वो एक तो ये है कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको एनालाइज करने के लिए, उनकी ज़रूरियात को समझने के लिए और उनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए बाकायदा तौर पे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करें और उसके साथ और बच्चों में भी अवेयरनेस लाई जाए। आज के दिन के ताल्लुक से ज़रूरत इस बात की है कि सरकार भी ऐसी पॉलिसी वाज़ह करे जिसमें प्राइवेट सेक्टर को, जिसमें सिविल सोसाइटी को, जिसमें NGOs को एक बराबर रोल दिया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। अफसोस की बात यह है कि सरकार यहाँ पब्लिक इनिशिएटिव को एनकरेज करने के बजाय डिस्करेज ही करती है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इस तंग नज़री से बाहर आए। ये स्कीमें क्लर्कों से नहीं चलती हैं, ये स्कीमें आमतौर पब्लिक इनिशिएटिव से ही चलती हैं। आखिरकार जो ये डिसेबल अफराद हैं, इनके ताल्लुक से हमारी एक ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना हमारा बुनियादी इंसानी फ़र्ज़ है। ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत होती है, इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। सरकार के पास काफ़ी बजट है। सरकार जो इदारे कायम करते हैं, आमतौर पर देखा गया है कि चंद सालों के बाद वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि सरकारी सेक्टर में, सरकारी निज़ाम में जितने भी इस किस्म के इनिशिएटिव्स सामने आ जाते हैं, वो ग्रो होने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय वो जो दिन ब दिन उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। अब रहा प्राइवेट सेक्टर, मैं मानता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में बाकायदा स्पेशल किड्स के लिए, डिसेबल पर्सनस के लिए बाकायदा इंतज़ाम होने चाहिए। उनके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, स्पेशल टीचर्स होने चाहिए और दूसरी बात क्वालिफाइड लोग होने चाहिए जो बच्चों को एनालाइज करें, डायग्नोज कर सकें, देखें कि इनमें क्या क्या जो डिसेबिलिटी है और उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन इसमें सरकार का रोल बनता है। क्या वजह है कि अगर सरकारी स्कूल में एक बच्चा जाता है गुर्बत की वजह से, तो पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। अलग बात है रिज़ल्ट क्या आते हैं, लेकिन यही बच्चा अगर एक प्राइवेट स्कूल में जाता है तो सिस्टम हॉस्टाइल हो जाता है, सिस्टम एनकरेज नहीं करता है, सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की मदद करे ताकि प्राइवेट स्कूल भी ऐसे डिसेबल बच्चों को आइडेंटिफाई करने में अपना रोल अदा करें और फिर उनकी तालीम और तरबियत पे, उनकी ट्रेनिंग पे तवज्जो दे। इसके लिए ज़रूरत है कि सरकार बाकायदा इसके लिए बजटरी प्रोविज़न रखे, स्कूलों की मदद करे ताकि स्कूल इस सिमत में अपना हक अदा कर सकें।